The topic is main idea of the passage, and we can say that central idea of the passage, main theme of the passage, crucial message of the passage, and then best explanation of the passage. Understood? All these things are showing that the same demand, yes or not? And yesterday we have seen something, and I said how to find out the main idea of the passage. Yes? Or civil services में आपको this question is also there, but comparatively this main idea of the passage related questions are comparatively less, and the most of the questions are based on what? Inference, assumptions based and all. I said I talk about main idea of the passage, where you will be able to get in the first line of the statement, where you can get, or you can say that in the last line of the passage. You can also get it, I said that when you are reading it, the same idea is under the what I said? Repetition. So repeating ideas when you are getting. और यदि ये सब भी चीज़ ना मिले तो summarize the passage, yes or not? क्या करना होगा? Passage should be what? In the summarize form. Thereafter we have seen that, उसके बाद हमने बोला कि what I said? But, however, although, whenever, when these words comes, generally the idea comes after, main idea of the passage comes after it. Yes or not? और जब आप सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू शुड बी वेरी गुड एट इंग्लिश. वो आज के डेट में जानता है कि आप यदि इंग्लिश पे अच्छे नहीं हैं तो आज का डिमांड ही क्या है? इंग्लिश. आप देख सकते हो लास्ट ईयर्स के सिलेक्शंस, आपको दिख रहा है लास्ट ईयर्स के सिलेक्शन. लास्ट ईयर केवल 8 बच्चे स्टूडेंट हु हैज व्हाट गॉट द सिलेक्शन इन द हिंदी मीडियम, एंड रेस्ट ऑफ द सिलेक्शन इज मीन्स ऑल द सेक्शन आप बोल सकते हो इंग्लिश मीडियम. इसका मतलब है इट इज एन आई सेड दैट कि यू शुड बी व्हाट आई सेड दैट, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंग्लिश इज वेरी मच रिक्वायर्ड, यस और नॉट, इन द प्रेजेंट टाइम. और यदि आप इंग्लिश पे अच्छे नहीं हैं तो यू विल बी डिपेंडेंट ऑन द अदर, तो इट इज़ नॉट इन अ गुड वे. सो हाँ, सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के रूप में रहेंगे तो हिंदी इज ओके, बट वहाँ पर भी आई सेड दैट आपको अगेन आपको यहाँ पर एक मीन्स देते समय एक इंग्लिश लैंग्वेज का भी टेस्ट होता है. यस. और जब आप पैसेज पढ़ रहे हैं तो योर इंग्लिश शुड बी ऑल्सो गुड. देन द सी सेड देयर इज एन आई सेड, वैसे आप मैथ्स एंड रीजनिंग से ही क्वालिफाई कर जाएंगे, वो 100% क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन इवन देन आई सेड दैट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और भी अच्छा कर लेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी होगी. एंड आई सेड दैट इंग्लिश इज नॉट एन हार्ड वन, केवल आपको व्हाट यू हैव टू सी द वर्ड, उस वर्ड की मीनिंग समझनी है. तो इन मीनिंग तो आप हिंदी में भी समझ सकते हैं. यस, yes or not? It's not a hard one. So simple, I said that first you should understand the passage, then you can understand it. So हम लोगों ने क्या क्या देखा, what are the things, and we have main idea of the passage, या central idea of the passage, main theme of the passage, or you can say best explanation of the passage, crucial message of the passage. इन सब के लिए first point you need to know what I said, that where you will get what, where you will be able to get in the first line of the passage. You can get in the what, last line of the passage. Third, repeating of the same
idea, and fourth you can do like what I said, that summarize the passes. Yes or not? इसके बाद हमने क्या बोला, आउट ऑफ द कंटेक्स्ट कुछ हो तो उसको आप पहले ही ऑप्शंस में उसको आप क्या कर दें, एलिमिनेट इट. यस. And then sixth point I said that, what I said that, but however, although, and whenever these are the words are there, it helps you to come to the, I said that, main idea of the passage. It is just after if this word are there, so then the word followed after this, it will be, I said that, high chance of what, that will be what, main idea of the passage. Yes or not? And as I explained you earlier, I said that also that but जब कोई ऑथर बट कहता है तो इसका मतलब पहले की सारी बातों को थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए अपने मेन बात को एम्फेसाइज करता है. यस और नॉट? यदि आप मुझसे कभी कुछ बोलते हो कि सर वुड यू लाइक टू कम फॉर लंच विद अस, और शायद मेरे पास टाइम नहीं हो या कोई भी हो और मैं बोल दूंगा आई विल नॉट कम, देन वो आपको अच्छा नहीं लगेगा. मैं बोलूँगा आई वुड लाइक टू कम बट ड्यू टू दिस सर्कमस्टांसेस आई कैन नॉट. तो मेन आइडिया तो हमने बाद में बोला. यस और नॉट? उससे पहले मैंने क्या करी, आपसे कहानी कही सिंपल कि मैं आपके यहाँ आपके पास आपके साथ एंजॉय करना चाहता हूँ बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस. तो मेन बाद में बोला हमने. यस और नॉट? यस, आई सेड दैट यस आई वुड लाइक टू कम although these are the issues which is involved in, I said that not able to, then I'm not able to come. तो हमें कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, तो generally I said that main idea of the passage, I said that main theme, central idea, sometimes it is also coming after this words. Clear है? So I said that हम लोग फर्स्ट पैसेज देखने जा रहे हैं. फर्स्ट पैसेज में क्या है, disruption of traditional, I said that disruption of traditional institutions. Institution can be anything, yes or not, where the group of people, it can be a private, it can be in a government and all. Disruption of traditional institution, or marriage is also, I said that, what, institution. जो भी आप करते हो, whatever you are doing, I said that, like I said that आज के डेट में देखा जाए द पॉलिटिकल पार्टी इज एन इंस्टीट्यूशन. यस और नॉट? आई सेड दैट ओल्ड फैमिली सिस्टम इज एन इंस्टीट्यूशन एंड देन प्रेजेंट फैमिली सिस्टम इज एन इंस्टीट्यूशन. सो वेर एवर यू विल सी दैट द वर्ड वेयर द ग्रुप इज देयर इन्वॉल्व्ड. यस और नॉट? इंस्टीट्यूशन. तो डिसरप्शन ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस, गेटिंग माय पॉइंट, विच इंस्टीट्यूशन. तो हमारे यहाँ ओल्ड टाइम से इट इज कमिंग इनटू इन आवर लाइफ दैट इज डिसरप्शन ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन. ये हमारा क्या होते जा रहा है, डिसरप्ट. डिसरप्शन ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, आइडेंटिफिकेशंस एंड लॉयल्टी. तो जितने भी ट्रेडिशनल आइडेंटिफिकेशंस हैं एंड देन लॉयल्टी इज लाइकली टू बी लीड टू एम्बिवैलेंट सिचुएशंस. तो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है ये खत्म होते जा रहा है. यस और नॉट? और एक न्यू टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन विच इज कमिंग. यस और नॉट? अर्लियर एक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अप्रोच इज समथिंग डिफरेंट, अभी आइडेंटिफिकेशन इज डिफरेंट. तो हम लोग अभी भी, और मे बी लॉयल्टी, पहले की लॉयल्टी और आज की लॉयल्टी आप देखेंगे, द ओल्ड ट्रेडिशनल लॉयल्टीज एंड द न्यू लॉयल्टीज, दोनों में क्या डिफरेंस है. ये सभी जगह में दिख रहा है कि आप कंप्लीटली ना तो किसी तरफ के हैं. आज के डेट में जैसा चेंज हुआ है, इट इज क्रिएटिंग एन एम्बिवैलेंट सिचुएशन. यस और नॉट? विच काइंड ऑफ सिचुएशन? एम्बिवैलेंट मीन्स आप किसी तरफ के भी नहीं हैं. अंडरस्टूड इट? अगेन, डिसरप्शन ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, आइडेंटिफिकेशन
and loyalty is likely to lead to ambivalent situation. It is possible that some people may renew their identification, yes or not? Renew their identification with traditional groups. कुछ लोग अपने possible है कि some people may renew their identification with, I said that, traditional group के साथ ही चलकर अपना क्या करें, identification को बनाए रखें नए. Whereas other align themselves with the new groups, और कुछ लोग हो सकते हैं कि अपने आप को न्यू ग्रुप्स के साथ अपने आइडेंटिफिकेशन को अलाइन जोड़ कर करें. Whereas other align themselves with the what? New groups and symbols emergent from the process of political development. आज के डेट में देखा जाए तो some are it is aligning themselves with the emergent from the process of political development. तो कुछ ऐसे न्यू ग्रुप के साथ अपने आप को ज्वाइन कर रहे हैं जहां पर आई सेड दैट यस, जिसमें कि अपनी एक न्यू आइडेंटिफिकेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं. यस, विच आइडेंटिफिकेशन? अगेन आई सेड दैट अलाइन देमसेल्व्स विद द न्यू ग्रुप्स एंड सिंबल्स. यस और नॉट? न्यू ग्रुप, और न्यू ग्रुप का हमेशा एक सिंबल होता है. यस और नॉट? बीजेपी एक ग्रुप है, इसके एक सिंबल है. आई सेड दैट बहुजन समाज पार्टी की अपनी एक न्यू ग्रुप है, उसका एक सिंबल है. Samajwadi party has a group, there is a symbol. Yes sir? So they align themselves with the new groups and symbols emergent from the process of political development. तो process of political development से कुछ new groups identification symbols आए हुए हैं, उनके साथ जुड़ रहे हैं. Some are, yes or not? Some are aligning themselves with the old. Yes or not? Like old one is, I said that if I am talking about, I said like Congress, BJP, they are the, I said, the traditional institution, and they try to, some of them are also trying to get attached with this. Some are aligning themselves with the new identification and I said symbols emergent from the process of political development. Yes, देश में कोई भी चीज. In addition, political development tends to foster group awareness. In addition, political development tends to foster group awareness of a variety of class. In addition, political development क्या करता है? Tends to foster group awareness. सबसे बड़ी चीज है कि वो ग्रुप के अवेयरनेस को बढ़ाता है कि ग्रुप इज इंपॉर्टेंट. Foster the what I said that group awareness, but this all these groups have a different quality. Yes or not? All the groups have what? Yes or not? Variety of class. हम ना अपना अपना कैरेक्टर है. Yes or not? Variety of class. Yes or not? Similarly, I said that there is a variety of class of this, variety of region, variety of what I said that group of tribes, variety of group of regions. आज के डेट में नए नए आइडेंटिफिकेशन ग्रुप्स का, रीजन्स का भी बनते जा रहा है. यस, कभी आप बोलते हो कि मैं बोडोलैंड बनाऊंगा, समटाइम्स यू से दैट मैं बुंदेलखंड बनाऊंगा. तो ट्राइंग टू मेक अ न्यू आइडेंटिफिकेशन. यस और नॉट? एंड देन आई सेड दैट क्लैन, दैट इज एक वंश के रूप में. रिलीजन एक न्यू आइडेंटिफिकेशन के लिए, एक ट्रेडिशनल आइडेंटिफिकेशन है, और एक आई सेड दैट व्हाट? प्रेजेंट आइडेंटिफिकेशन. यस और नॉट? एक ट्रेडिशनल आइडेंटिफिकेशन चाहे वो आई सेड दैट पारसी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, that they have an, I said that one traditional identification and the present identification. और जो अब आज के डेट में जो present identification है, कहीं ना कहीं little bit what I said that ambivalent. Yes or not? और कहीं ना कहीं यदि आप political identification के रूप में जाएंगे तो आप किसी के साथ जुड़ रहे हैं, when you are getting attached with the someone else, तो somewhere you are not loyal. Yes or not? Somewhere you are not loyal. Yes or not? और I said that tribe, religion, clan, लैंग्वेज, रिलीजन, ऑक्यूपेशन एंड अदर्स, कहीं पे भी एक न्यू ग्रुप के रूप में आप आ रहे हैं, चाहे ऑक्यूपेशन में या रिलीजन में या लैंग्वेज में, तो ये एक एम्बीवैलेंट सिचुएशन क्रिएट कर रहा है. यस और नॉट? व्हाट सिचुएशन इज क्रिएटिंग इज, टेल मी. तो अगेन मैं दोबारा पढ़ने जा रहा हूं, इसके बीच हमने क्या देखना है. यस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इट इज व्हाट द वर्ड ही ट्राई टू सेज. अच्छा, ये मुझे बताइए क्या कि ट्रेडिशनल सिस्टम ज्यादा अच्छा है कि न्यू सिस्टम ज्यादा अच्छा है? According to this passage, ये क्या बोल रहा है कि ट्रेडिशनल सिस्टम के बाद जब न्यू सिस्टम आया तो देयर इज अ सिचुएशन व्हिच हैज बीन क्रिएटेड व्हाट? एम्बीवैलेंट. यस और नॉट? सिचुएशन इज डिलेमा में आ गया. तो इन द फर्स्ट लाइन इट हैज बीन सेड, इन द फर्स्ट लाइन व्हाट हैज बीन सेड? यस, टेल मी.
disruption of traditional institution identification and loyalty, yes or not? That is likely to lead to what? Ambivalent. इसका मतलब है कि ऐसी सिस्टम लॉन्ग टाइम सस्टेन नहीं करेगी, सिंपल सी चीज है, यस। ऐसी सिस्टम जो आज की सिस्टम है, यदि उसको सस्टेन करना है, यस और नॉट, इट हैज टू गो फॉर लॉन्ग टाइम। तो चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो या आइडेंटिफिकेशन हो, लॉयल्टी हो, तो ये सभी जगह क्या होनी चाहिए? यस टेल मी, ट्रेडिशनल होनी चाहिए। तो यदि ट्रेडिशनल होगा तो क्या होगी? सस्टेनेबिलिटी आएगी, यस और नॉट? अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन द प्रेजेंट सिनेरियो, डू नॉट गो आउट ऑफ दिस। आपको ये पैसेज जो वो दोबारा मैं पढ़ रहा हूं, डिसरप्शन ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन आइडेंटिफिकेशन एंड लॉयल्टी इज लाइकली टू लीड टू एम्बिवैलेंट सिचुएशन, यस और नॉट? इसका मतलब कौन सा सिस्टम अच्छा है, पहले वाला और आज का? ट्रेडिशनल सिस्टम इज गुड, यस और नॉट? तो हम लोगों ने फर्स्ट लाइन को बहुत अच्छे से समझा, इज इट क्लियर? Another point I said that it is possible that some of the people may renew their identification with traditional groups. कुछ लोग कह रहे हैं कि अपने न्यू आइडेंटिफिकेशन के लिए ट्रेडिशनल ग्रुप्स में ज्वाइन किए, whereas other align themselves with the new groups and symbols emergent from the process of political development. नए नए political development के रूप में ग्रो हुए, उनके साथ अपने आप को अलाइन किया। And in addition, political development tends to foster group awareness of, जैसे साथ में देखा जैसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट टेंड्स टू फोस्टर ग्रुप अवेयरनेस ऑफ वैरायटी क्लासेस, इसी तरीके से ट्राइबल अवेयरनेस, ट्राइबल में भी चेंजेस हैं, यस सर? ट्राइबल एस्पेक्ट इज आल्सो व्हाट आई सेड दैट चेंजिंग, एंड वहां पे भी ट्रेडिशनल ट्राइब एंड देन व्हाट आई सेड दैट प्रेजेंट ट्राइब। तो प्रेजेंट ट्राइब की जो सिचुएशन है, अगेंस्ट दिस पैसेज वांट टू से दैट इट इज नॉट इन द इट इज नॉट इन गुड एम्बिवैलेंट सिचुएशन। प्रेजेंट की रिलीजन है वो कैसी सिचुएशन में? एम्बिवैलेंट सिचुएशन में। प्रेजेंट का रीजन है जो वो कैसी सिचुएशन में? एम्बिवैलेंट सिचुएशन में है। प्रेजेंट का आई सेड द ऑक्यूपेशन जो है वो कैसा सिचुएशन में है? एम्बिवैलेंट। यू आर नॉट श्योर, यस और नॉट? सो दिस आइडिया इज क्लियर टू यू, यस? अब हमें देखना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द above passage. Best explanation of the above passage means main idea. Political development is not, और एक ध्यान में रखेंगे, out of the context ध्यान में रखेंगे, yes or not? जो इससे रिलेटेड, पैसेज से रिलेटेड ना हो तो उसको तुरंत आपको क्या करना है? रिमूव। Political development is not a unilinear process, for it involves both growth and decay. Political development is not a unilinear process. इसने ऐसा कुछ बोला ही नहीं, क्या इसने बोला? यस, पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज यूनिलीनियर प्रोसेस, ऐसा तो नहीं बोला। उसने बोला कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये सब भी किस सिचुएशन से क्रॉस कर रहे हैं? एम्बिवैलेंट सिचुएशन, यस और नॉट? तो पहला, पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज नॉट ए यूनिलीनियर प्रोसेस फॉर इट्स इन्वॉल्व बोथ ग्रोथ एंड डिके। तो दिस इज आई सेड दैट व्हाट? रॉन्ग। अकॉर्डिंग टू द पैसेज इट इज रॉन्ग, क्योंकि पैसेज में ऐसा कहीं पे एक्सप्लेन नहीं किया गया। नेक्स्ट, ट्रेडिशनल सोसाइटी सक्सीड इन रेसिस्टिंग, ट्रेडिशनल सोसाइटी सक्सीड समझ रहे हैं? ट्रेडिशनल सोसाइटी सक्सीड इन रेसिस्टिंग पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ऐसा तो कहीं मेंशन ही नहीं किया है कि सक्सेसफुल हुआ कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट के पॉजिटिव एस्पेक्ट को उसने रोक दिया, ऐसा कुछ मेंशन किया? So first and second we have, I said that, completely removed. See, it is impossible for traditional society, impossible, what it is I said that, do you understand that? 100%, ये जो बोल रहा है ना impossible word, इसका मतलब है कि आपको धीरे धीरे अपने दिमाग में आपके बैठ चुका होगा। पहले दिन से मैं बोल रहा हूं, all, any, I said that, never, not, none, इसका मतलब इम्पॉसिबल का मतलब नेवर, यस और नॉट? इट इज इम्पॉसिबल फॉर ट्रेडिशनल सोसाइटीज टू ब्रेक अवे फ्रॉम द लिंगरिंग लॉयल्टीज। इट इज इम्पॉसिबल फॉर ट्रेडिशनल सोसाइटीज टू ब्रेक अवे फ्रॉम द, तो पहले ही हम लोग निगेट कर चुके हैं कि ये गलत है, ऐसा कहीं पे भी इसने नहीं बोला है। आपने शायद देखोगे तो लाइकली बोला है। फर्स्ट लाइन में जाएंगे तो disruption of traditional institution identification and